یا یہ کیا ہے؟ ساتھ بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں. خان ہمارا لیڈر ہے لیکن کیا لیکن خان کا اعتماد ہے اور پھر اگر اعتماد ہے تو پھر مکمل کرو. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ترین گروپ پر برس پڑے. کہا یہ کیا ہے کہ ساتھ بھی ہیں اور نہیں بھی. خان ہمارا لیڈر ہے, خان پر اعتماد ہے اور پھر اگر مگر. انہوں نے کہا اگر اعتماد ہے تو پھر مکمل کرو, بھروسہ کرو. چینی مافیا ہمیشہ بلیک میل کرتا آیا ہے. میں عمران خان سے کہتا ہوں ڈٹ جاؤ. بھارت پر تنقید کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا بھارت مذاکرات سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے. بھارت سے جنگ نہیں چاہتے مگر معاملات میں بگاڑ کا ازالہ بھی بھارت کو ہی کرنا ہے. پرائم منسٹر عمران خان یہ ایک میجر انیشیٹو ابھی کرنے جا رہے ہیں جس کے بیچ میں ٹرکل ڈاؤن کے اوپر تو ہم کام کر رہے ہیں. ایگریکلچر پہ کام کریں گے, انڈسٹری پہ کام کریں گے, ایکسپورٹس پہ کام کریں گے, ہاؤسنگ پہ کام کریں گے, ان سب چیزوں پہ کام کریں گے, لیکن باٹمز اپ بھی کریں گے. ہم عام آدمی کے لیے بھی اسکیمز لے کے آئیں گے جہاں ان کی روزگار ہو. وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ معیشت کی بحالی کے لیے پلان تیار ہے. بجٹ میں نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے. مہنگائی کا خاتمہ اولین ترجیح ہے. کہا IMF نے اس بار سخت رویہ اپنایا. ہم فوڈ سرپلس ملک نہیں بلکہ غذائی خسارے والا ملک بن گئے ہیں. اگلے سال 5% گروتھ ہو سکتی ہے اور اس سے اگلے سال 6%. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ ورکرز کی کم از کم اجرت 20,000 کر دی ہے. تحریک انصاف کی حکومت نے 2.5 سال میں ورکر کی کم از کم اجرت میں 5,000 روپے اضافہ کیا ہے. وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت محکمہ محنت کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے خصوصی اجلاس میں انڈسٹریل ورکرز کے لیے ہاسٹلز کے قیام کی تجاویز کا جائزہ لینے کی ہدایت. لاہور میں لیبر کے لیے 720 فلیٹس کے پروجیکٹ کو بھی جلد مکمل کرنے کی ہدایت. سابق وزیر داخلہ چودھری نثار نے کل پنجاب اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھانے کا اعلان کر دیا. اپنے ایک بیان میں کہا کہ کل پیر 24 مئی کو پنجاب اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھاؤں گا. حلف اٹھانے سے میرے موقف یا سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اسمبلی سے تنخواہ DA سمیت کوئی مراعات نہیں لوں گا. حلف اٹھانے کا مقصد حلقے میں سیاسی حالات اور محرکات کنٹرول کرنا ہے. وفاقی وزیر فواد چودھری کا ٹویٹ لکھا اسرائیلی جارحیت پر نواز شریف خاموش رہے. خاموش رہنے کی وجہ بیرون ملک اربوں روپے کی جائیدادیں ہیں. نواز شریف ہر معاملے پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. حکومت پر تنقید کا کوئی موقع نہیں جانے دیتے لیکن فلسطین پر اور اسرائیلی جارحیت پر ان کا حتیٰ کہ ان کی بیٹی اور داماد کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا. پاکستان کی سعودی حکومت سے چینی ویکسین رجسٹر کرنے کی درخواست. سعودی حکومت نے عازمین حج کے لیے کرونا ویکسینیشن کی شرط عائد کر دی ہے. اس سلسلے میں پاکستانی وزارت خارجہ کا سعودی حکومت سے رابطہ. پاکستان نے چین کے علاوہ دیگر ممالک کی ویکسین فوری لگوانے مشکل قرار دیا. بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ PTI حکومت ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی معاشی مجرم ہے. کہا عمران خان ملک کو تباہی کی جانب لے جا رہے ہیں. اگر نہ روکا گیا تو وہ گھر گھر میں معاشی بدحالی کی آگ لگا دیں گے جسے دہائیوں میں بجھایا نہ جا سکے گا. عمران خان کو اپنے معاشی جرائم پر ایک عام آدمی سے معافی مانگنا ہوگی. عمران خان کا جرم صرف مہنگائی کرنا نہیں بلکہ مہنگائی کرنے والی مافیا کی سرپرستی کرنا بھی ہے. کرونا پابندیوں کے باعث عام ایکسپورٹر غیر یقینی صورتحال کا شکار. رواں سال 17 لاکھ میٹرک ٹن سے زائد آم کی پیداوار کا امکان جبکہ حکومت نے اس سال 1.5 لاکھ میٹرک ٹن آموں کی برآمد کا ہدف مقرر کیا ہے جس میں 3,80,000 میٹرک ٹن سے زائد سندھ کا آم بھی شامل. السلام علیکم. چینل 51 کے ساتھ میں ہوں ثانیہ گل. ہیڈ لائنز اپنے جانی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حکومت کسی پریشر گروپ کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوگی. وزیر اعظم عمران خان نے PTI کور کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری پوری سیاسی جدوجہد ہی قانون کی حکمرانی کے لیے تھی. ہم انصاف پر یقین رکھتے ہیں, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت PTI کور کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے جہانگیر ترین گروپ سے ملاقات پر بریفنگ دی. اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہماری پوری سیاسی جدوجہد ہی قانون کی حکمرانی کے لیے تھی. ہم انصاف پر یقین رکھتے ہیں, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. احتساب کا عمل بلا تفریق جاری رہے گا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اگر حکومت گرانا کسی کا مقصد ہے تو شوق پورا کر لے. ہم کسی کی بلیک میلنگ میں آ کر اپنے منشور سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اقتدار بچانے کی خاطر کسی کو NRO نہیں دیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے بریفنگ میں کہا کہ صوبائی حکومت کسی رکن اسمبلی کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنائے گی. ہم اپنے ارکان اسمبلی کے تمام جائز تحفظات دور کریں گے.
वज़ीर आज़म इमरान खान को इंटरनेशनल माहौलियाती कॉन्फ्रेंस की सदारत के लिए चुन लिया गया। तारीख में पहली बार पाकिस्तान को माहौलियात के आलमी दिन की मेज़बानी का एजाज़ मिला है, जबकि पाकिस्तान 5 जून को आलमी दिन पर मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक अहम ऐलानात करेगा। कॉन्फ्रेंस में बिलियन ट्री, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, नेशनल पार्क्स और ग्रीन जॉब्स को उजागर किया जाएगा। दूसरी जानिब आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सिर्फ 4 आलमी शख्सियात का चुनाव किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान को इंटरनेशनल माहौलियाती कॉन्फ्रेंस की सदारत के लिए भी चुन लिया गया है और वो 4 जून की रात आदमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, पोप फ्रांस और जर्मन चांसलर शिरकत करेंगे, जबकि माहौलियात से मुतालिक मेगा तकरीब 5 जून को इस्लामाबाद में होगी। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता साल चीन को आलमी यौम माहौलियात पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी का एजाज़ मिला था। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान मईशत के इस्तेहकाम और मौसर खारजा पॉलिसी के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों की हौसला अफजाई कर रहा है। रोशन डिजिटल पाकिस्तान इक़दाम के आगाज के बाद 6 माह के दौरान मुल्क में $1 अरब की तस्वीरात ज़र भेजी गई। वज़ीर खारजा ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की काविशों की तारीफ की है। उन्होंने न्यूयॉर्क और अमेरिका में मुक़ीम पाकिस्तानी ताजरों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोशन डिजिटल पाकिस्तान समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का फैसला किया है ताकि वो सियासी निज़ाम में फैसला कुन किरदार अदा कर सके। इक़दाम के आगाज के बाद 6 माह के दौरान मुल्क में $1 अरब की तरसीलात ज़र भेजी गई, जिसका सेहरा बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को जाता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत ने मुल्क में सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए ई वीज़ा का आगाज किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि दुनिया में मुआशी बुहरान आया उस वक्त भी मुल्क की मैशत का इतना बुरा हाल नहीं था जितना अब है। इमरान खान के बढ़ते कदम ना रुके तो घर घर मुआशी बदहाली की आग लगा देंगे। एक बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि इमरान खान मुआशी बर्बादी की दास्तानें छोड़कर शौकत अजीज और परवेज मुशर्रफ की तरह बाहर चले जाएंगे। इमरान खान को अपने मुआशी जराइम पर आम आदमी से माफी मांगना होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि इमरान खान के मुआसिन डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ के दौर में शरह गुर्बत 50% थी। इमरान खान मुशर्रफ के हदफ के ताक़ुब में मुल्क को तबाही की जानिब ले जा रहे हैं। उनका कहना था कि बैरून मुल्क से सख्त शराइत पर भारी कर्जे लिए जा रहे हैं। इमरान खान की काबीना करप्शन में मुल्क के खजाने का पैसा उड़ा रही है। इमरान खान का जुर्म सिर्फ महंगाई नहीं, महंगाई माफिया की सरपरस्ती करना भी है। दूसरों पर इल्जामात लगाने वाले इमरान खान अपने गिरबान में झांके। कोरोना केसेस की सूरत हाल तशवीशनाक। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि ईद के बाद सूबे में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हुआ। सूरत हाल तशवीशनाक है। इस वक्त कई अस्पतालों में जगह खत्म हो गई है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सिंध में एक हफ्ते के दौरान कोरोना के 8.37% केसेस मुस्बत आए हैं। कराची में शरह 13% से ज्यादा और हैदराबाद में 10% से ज्यादा रही है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सूरत हाल तशवीशनाक है। इस वक्त कई अस्पतालों में जगह खत्म हो गई है। मुराद अली शाह का कहना था कि वो इस वक्त कुछ खोलने की बात नहीं करते। बाजार 8 के बजाय अब 6 बजे बंद हो जाएंगे। होटल्स पर डाइन इन और डाइन आउट बंद रहेगा, ताहम टेक अवे और होम डिलीवरी खुली रहेगी। साबिक वज़ीर दाखिला और रहनुमा नून लीग चौधरी निसार का कल पंजाब असम्बली की रुकनीत का हलफ उठाने का फैसला। कहा, हलफ उठाने से मेरे मौक़िफ़ या सोच में कोई तब्दीली नहीं आएगी। असम्बली से तनख्वाह TADA समेत कोई मराद नहीं लूँगा। अपने एक बयान में चौधरी निसार का कहना था कि कल पीर 24 मई को पंजाब असम्बली की रुकनीत का हलफ उठाऊंगा। हलफ उठाने से मेरे मौक़िफ़ या सोच में कोई तब्दीली नहीं आएगी। उन्होंने कहा, असम्बली से तनख्वाह TADA समेत कोई मराद नहीं लूँगा। हलफ उठाने का मकसद खलके में सियासी हालात और महरिकात कंट्रोल करना है। चौधरी निसार ने कहा कि पिछले चंद दिनों में उनके पंजाब असम्बली के हलफ उठाने या ना उठाने के हवाले से खबरें और कहानियाँ गर्दिश करती रही। इस बारे में ना तो उन्होंने कोई बयान दिया और ना ही उनके किसी सेक्रेटरी या तर्जुमान ने लबकुशाई की, फिर भी कहानियाँ बनती रही। ख्याल, रमजान के बाद ईद भी गुजर गई, लेकिन मुर्गी के गोश्त की कीमतें नीचे ना सकी। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुर्गी का गोश्त 470 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुर्गी के गोश्त की थोक कीमत 444, दुकानों पर 470 रुपये किलो और बोनलेस 640 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। पेशावर में कीमत 481 रुपये फी किलो हो गई है, जबकि कोयटा में मुर्गी का गोश्त 500 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। इस सूरत हाल में खरीदारी नहीं, दुकानदार भी परेशान हैं। उनका कहना है कि मुर्गी की कीमत कम होने की कोई आसार नजर नहीं आ रहे। कारोबार पर मनफी असर पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी है। मटन और बीफ पहले ही महंगे हैं, अब तो मुर्गी का गोश्त भी पहुंच से बाहर हो गया है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया मुर्गी के गोश्त की कीमत कम करने के लिए फौरी इक़दाम करे।
सलामती कौंसिल का गजा जंग बंदी की मुकम्मल पासदारी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा पर इसराइली जारहियत के बाद पहला मुश्तरका बयान जारी कर दिया है। सलामती कौंसिल की जानिब से जारी बयान में फ़राकीन से गजा जंग बंदी की मुकम्मल पासदारी का मुतालबा किया गया है। सलामती कौंसिल के अरकान ने फ़लस्तीनी शहरियों के लिए फौरी इमदाद की ज़रूरत पर जोर दिया है। सलामती कौंसिल का मुश्तरका एलामिया अमरीकी मंदूब की हिमायत से जारी हुआ है। इससे कबल अमरीका ने सलामती कौंसिल का मुश्तरका एलामिया रुकवा दिया था। विफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 5 से 16 साल की उम्र के 32% बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। सर्वे के मुताबिक स्कूल में दाखिले के हवाले से पंजाब सबसे ज्यादा, केपी दूसरे नंबर पर, जबकि सिंध तीसरे और बलूचिस्तान आखिरी नंबर पर है। पाकिस्तान के समाजी और मयारात ज़िंदगी से मुतालिक इदारा शुमारियात ने सर्वे रिपोर्ट जारी की है। इदारा शुमारियात ने मुल्क की तारीख में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक सर्वे किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 5 से 16 साल की उम्र के 32% बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। मुल्क में शरह खानदगी 60% पर जमूद का शिकार है। सिंध में शरह खानदगी में कमी आई है। प्राइमरी, मिडिल और मैट्रिक की सतह पर स्कूल में दाखिले जमूद का शिकार हैं। सर्वे के मुताबिक स्कूल में दाखिले के हवाले से पंजाब में सबसे ज्यादा, केपी दूसरे नंबर पर, सिंध तीसरे और बलूचिस्तान आखिरी नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में 47%, पंजाब में 26% बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। सर्वे नताइज के मुताबिक मुल्क में 93% आबादी के पास मोबाइल फोन की सहूलियात है। 65% मर्द और 25% खातिन के पास मोबाइल फोन है। सराय आलमगीर पुलिस की बड़ी कामयाबी। थाना सदर सराय आलमगीर के इलाके खंबी पुल पर अंधाधुंध फायरिंग करके एक ही खानदान के 3 अफराद को मौत के घाट उतारने वाले 8 नामजद मुल्जिमान को एक हफ्ते के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। अलग कत्ल क्लैशनकोफ भी बरामद। थाना सदर सराय आलमगीर के इलाके खंबी पुल पर साबका लड़ाई और मुकदमा बाजी के इनाद पर कार में सवार एक ही खानदान के 3 अफराद, जिनमें चचा और 2 भतीजे शामिल थे, को मुखालिफिन ने अंधाधुंध फायरिंग करके बेईमाना तरीके से मौत के घाट उतार दिया था। मक़तूलीन में सैफ अली, साद हमीद, बाबर रशीद, सकनाए चक नजर शामिल थे। मुल्जिमान कत्ल की वारदात करने के बाद मौका से फरार हो गए और गिरफ्तारी से बचने के लिए नामालूम मुकाम पर रोपोश हो गए थे। डीपीओ गुजरात ने खुसूसी टीम को हिदायत जारी की है कि तहरीक कत्ल की इस अंधाधुंध वारदात करने वाले मुल्जिमान को जल्द अज जल्द ट्रेस करके गिरफ्तार किया जाए, जिस पर खुसूसी टीम ने शब रोज मेहनत के बाद मुल्जिमा को आलाए कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया है। सराय आलमगीर पुलिस ने ये जो इंतहाई जालमाना वाक़या हुआ, उसके 9 नामजद मुल्ज़मान में से 8 मुल्ज़मान गिरफ़्तार कर लिए, आला कत्ल भी बरामद कर लिया, बाकी एविडेंस इकट्ठी की जा रही हैं। मेरे बच्चे मर गए, ना वापस नहीं आना, इन्हों की ऐसा कैफरे किरदार तक बचाओ कि वापस आकर लोगों ने बच्चियों की ना नुकसान पहुंचाओ। अब रुख करते हैं फैसलाबाद का। उधर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में पार्किंग ठेकेदार की गुंडागर्दी के खिलाफ एसीसीटी का एक्शन। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं फैसलाबाद से नुमाइंदा चैनल 51 राना उसामा की इस न्यूज रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद सैयद अयूब बुखारी का पार्किंग माफिया के खिलाफ एक्शन। एसीसीटी फैसलाबाद को इत्तला मौसूल हुई कि फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में पार्किंग ठेकेदार की जानिब से अवाम के साथ पार्किंग की मद में जायद वसूली करके फ्रॉड किया जा रहा है। टोकन पर मौजूद मोटरसाइकिल पार्किंग के सरकारी रेट 10 रुपए की बजाय 20 रुपए, जबकि कार के 30 रुपए की बजाय 50 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। पार्किंग ठेकेदार ने फ्रॉड करते हुए पर्ची के बाईं जानब मोटरसाइकिल 20 जबकि दाईं जानब 10 रुपए लिखा हुआ है। एसीसीटी ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए मुकामी पुलिस को तलब कर लिया। मौका से ठेकेदार जमील को गिरफ्तार करवाकर थाना सिविल लाइन की हवालात में बंद करवा दिया, जिसके खिलाफ अस्पताल इंतजामिया सिक्योरिटी इंचार्ज की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हल्का इंतखाब कालाबाग के शहरी शदीद गर्मी में पानी जैसी नेमत से महरूम हैं। वाटर सप्लाई का गंदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के आबाई इलाके और मियांवाली का सबसे बड़ा तिजारती शहर कालाबाग के शहरी पानी जैसी सहूलियात से महरूम है। वाटर सप्लाई के पानी में गटरू का पानी मिक्स होने लगा, जिसकी निशानदेही पहले भी कई बार की जा चुकी है, लेकिन कोई तवज्जो न दी गई और वाटर सप्लाई मुलाजमीन ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि हमसे बिल तो साफ पानी का वसूल किया जाता है, लेकिन हमें गटरू का पानी सप्लाई किया जा रहा है। ये गंदगी मिला पानी इस्तेमाल करने से इलाके में वबाई अमराज, हैजा, डायरिया और यरकान पेट की मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का
खतरा लाहक हो गया है। शहरी का कहना है कि अगर वबाई अमराज फूट पड़ी तो जिम्मेदार कौन होगा। शहरी ने डिप्टी कमिश्नर मियां वाली और असिस्टेंट कमिश्नर इसाखेल से अपील की है कि इस देरीना मसले पर फौरी तवज्जो दी जाए। लाहौर में बगैर मास्क ड्राइविंग पर गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को चलान जारी। ट्रैफिक पुलिस ने एक ही रोज में बगैर मास्क ड्राइविंग करने पर मजीद 6435 चलान किए। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 64 पब्लिक सर्विस व्हीकल्स को भी बंद कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक मजीद खोखर की इस रिपोर्ट में। बगैर मास्क ड्राइविंग पर गाड़ियों मोटरसाइकिलों के चलान जारी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर कैप्टन सैयद हमाद आबिद ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने एक ही रोज़ में बगैर मास्क ड्राइविंग पर मजीद 6435 गाड़ियों का चालान टिकट जारी किया था। कोरोना एसओपीज की खिलाफवर्जी पर 64 पब्लिक सर्विस व्हीकल्स भी बंद। कोरोना की तीसरी लहर में मजमूई तौर पर 3,19,000 गाड़ियों के चलान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोरोना एसओपीज की खिलाफवर्जी पर 78 मुकदमात भी दर्ज। कोरोना एसओपीज की खिलाफवर्जी पर 2704 पब्लिक सर्विस व्हीकल्स बंद। 2,17,555 मोटरसाइकिलों को चालान टिकट जारी किए गए। 50% से ज़्यादा सवारियां बैठाने पर 24,000 पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी चालान टिकट जारी। तारिक मजीद खोखर, ब्यूरो चीफ, चैनल 51 न्यूज़, जेहलम। हम लोग 3,10,000 से ज़्यादा फाइन्स कर चुके हैं ऐसे लोगों को जो मोटर बाइक्स पे 2 या 2 से ज़्यादा अशखास हो, गाड़ियों पे जो 2 या 2 से ज़्यादा लोग बैठते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वायलेशन जो 50% से ज़्यादा सवारियों की पाबंदी पे अमल दरामद नहीं कर रहे थे। तो इसके साथ साथ हमने कोई 2300 के करीब जो गाड़ियां हैं ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज वो इम्पाउंड की हैं। 78 के करीब हमने FIRs दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मामले खुसूसी शहबाज गिल का अपने आबाई इलाके डिस्कोट का एक रोज़ा दौरा। शहबाज गिल ने आबाई हल्के में तरक्याती फंड्स का ऐलान किया और गर्ल्स कॉलेज का इफ्तिताह भी किया। आबाई गांव पहुंचे तो लोगों ने घोड़े के डांस और ढोल की थाप पर इस्तकबाल किया। मामले खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज गिल ने अपने आबाई इलाके डिस्कोट का रोज़ा दौरा किया। आबाई गाँव माजीवाल में बंजर जमीनों के हवाले से 40 करोड़ 25 लाख फंड का ऐलान किया, जिससे 30 गाँव की बंजर जमीनों पर ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। शहबाज गिल का अपने आबाई गाँव पहुंचने पर लोगों ने घोड़े के डांस और ढोल की थाप पर इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की और गले में माला डाली गई। डॉक्टर शहबाज गिल अपने गांव के घर घर जाकर लोगों से मिले। समंदरी नहर में शगाफ पड़ने से जमींदारों की फसलें तबाह। महकमा इनखार के अमले ने नहर के शगाफ को बंद करना शुरू कर दिया। समंदरी राजबा कलियांवाला नहर में 440 गाहवे फैजपुर के करीब शगाफ पड़ गया, जिससे पानी खड़ी फसलों में दाखिल हो गया। जबकि महकमा इनखार के अमले ने इतला मिलते ही मौका पर पहुंचकर नहर के शगाफ को बंद करने का काम शुरू कर दिया है। इतला के मुताबिक 3 से 4 मुरब्बा से जायद रकबे ज़ेरे आब आ गए हैं, जिसमें तकरीबन मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां उगाई गई थी। अहले इलाका के मुताबिक नुकसान तकरीबन करोड़ों में बताया जाता है। मुतासरीन का कहना है कि अभी तक मुकम्मल नुकसान का पता लगाया जा रहा है, जबकि महकमा इनखार की टीमें मौका पर मौजूद शगाफ को बंद करने में मसरूफ हैं। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा Facebook पेज लाइक करना मत भूलिएगा। देखते रहिए चैनल 51।